मिट जाए सारे मन के द्वंद्व, बिना क्लेश और बिना क्रंद। प्रकृति की गोद में करें ध्यान और योग, प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब रोग। जीवन के सब रोग मिटे आनंद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा हो तो हृदय खिलेगा। गुड मॉर्निंग each and everyone present here. I, Kavish Dua, welcome you all to today's special assembly on International Yoga Day. As all of you know, today is celebrated as Yoga Day worldwide and it's summer solstice too. In Swami Vivekananda's words, all this bringing of your mind into a higher state of vibration is included in one word, in yoga. Yoga literally means union. With whom? The divine. It helps you to connect to the Almighty God and to totally transform you. Do you know that Lord Shiva is deemed to be the supreme Lord of Yoga? Let us begin the day by invoking the blessings of the God Almighty. Here is Athar to recite the Sanskrit shlok followed by a short prayer. ओम सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Dear God, thank you for people who make us happy. Thank you for our families and friends. Please help us to work at making others happy. We pray for people who are sad and lonely. Please help us to take the time of smile at and be kind to others as we walk through this world together. Amen. Dear friends, today is 21st June. It is summer solstice, the longest day of the year, the day when sun travels its longest path through the sky and reaches its point in the northern hemisphere for each of us, reminding us the nourishment light of the sun and light within each of us. The sun's warmth provides the light necessary for all living things to thrive and prosper. Let us bow down our head and observe a minute silence, gratitude to the sun god, and pray for peace. The message of yoga in promoting both the physical and mental well-being of humanity has never been more relevant. A growing trend of people around the world embracing yoga to stay healthy and rejuvenated and to fight social isolation and depression has been witnessed during the present time. Recognizing this important role of yoga, this year's commemoration of the International Day of Yoga focuses on yoga for well-being, how the practice of yoga can promote the holistic health of every individual. I now invite my friends to shed some light on the history and importance of International Yoga Day. International Yoga Day is observed every year on June 21st as mandated by the United Nations to highlight the importance of the practice defined as physical, mental, and spiritual at the same time in helping people lead a healthier lifestyle. The day is marked to raise awareness of the many benefits of yoga as it continues to grow in popularity across the world and is practiced in its various forms. This year, the International Day of Yoga is putting its focus on well-being beyond the immediate impact on physical health. The idea for a UN-mandated International Day of Yoga was first proposed by Prime Minister Narendra Modi during his speech at the United Nations General Assembly in 2014. In his speech, Prime Minister Modi called yoga an invaluable gift of India's ancient tradition and called for the harmony between man and nature through yoga. This initiative was backed by as many as 177 nations, the highest number of co-sponsors for any UN General Assembly resolution of such nature. Following Prime Minister Modi's proposal, 21st June was marked as the date to celebrate International Yoga Day, since it marks the summer solstice, the longest day of the year in the Northern Hemisphere, which holds special significance in many parts of the world. From the perspective of yoga, the summer solstice marks a transition to Dakshinayan. The second full moon after summer solstice is known as Guru Purnima. Shiva, the first yogi, also known as the Adi Yogi, is said to have begun imparting the knowledge
of yoga to the rest of mankind on this day and became the first guru. The first International Day of Yoga was observed around the world on 21st June 2015. The Ministry of Ayush made the necessary arrangements in India. Similar days have been held in cities in India and around the world each year since. When it comes to exercises with staying power, few have been around as long as yoga. It has great impact on our physical and mental health. किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ किसी भी मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों कंधे ढीले, सर सीधा, आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का ख्याल। आपका पूरा शरीर शांत और स्थिर ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। इसका ख्याल रखते हुए मानसिक रूप से अपने आप को योग के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। थोड़ी देर तक शांत और स्थिर बैठे रहने के उपरांत अपनी सजगता को श्वासों पर ले जाइए। आती जाती श्वासों का ख्याल। सजगता भ्रूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर, और फिर दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करेंगे। आँखों पर रखेंगे और धीरे से हाथ को नीचे करते हुए आँखों को खोल लेंगे। हरिओम तस्सत। आज का सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ करके दोनों पैरों के तलवों को आपस में सटा लीजिए। दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में जोड़कर पैर के उंगलियों के साथ जोड़ दीजिए। इस अभ्यास को करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, दोनों कंधे ढीले, और फिर धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे करेंगे। बहुत ही सहजता से श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को लगभग 15 बार तक करेंगे। बहुत ही आराम से, सहजता से दोनों घुटनों को ऊपर बाजू में सटाएंगे और नीचे ज़मीन में। यह अभ्यास यहाँ पर पूरा हो गया। पूर्ण तितली आसन। इस अभ्यास से हमारे जो जांघ की हड्डियाँ हैं, जांघ के मसल्स हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र। इसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास जो हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं। इससे हमारे डाइजेशन, जो पाचन क्रियाएं हैं, वो बहुत अच्छी से होती हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन का, स्कंद चक्र। दोनों हाथों को सामने, धीरे से एल्बो को बेंड करते हुए, उंगलियों को कंधे के ऊपर, दोनों कहुनी को सटाकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास लेंगे और छोड़ते हुए नीचे। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्कंद चक्र का अभ्यास एक एक राउंड जो है वो हम लोग श्वासों के साथ करेंगे। 12 बार इस अभ्यास को करेंगे हम लोग। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही सहजता से सर सामने की तरफ, आगे झुकाएंगे नहीं। जब हम केहूनी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास को 12 बार क्लॉकवाइज करने के बाद इसको विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार श्वासों की गति रहेगी। श्वास लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दोनों केहूनी आपस में सटेंगे और गर्दन के पीछे दोनों रिस्ट जो है वो भी सटेंगे। स्कंद चक्र। इस अभ्यास से हमारे कंधों पर होने वाले तनाव को हम लोग दूर करते हैं।
लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठते हैं या लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं एक स्थिति में बैठकर, तो कंधों पर जो तनाव होता है उसको हम लोग इस अभ्यास से दूर करते हैं। अभ्यास अस्कंद चक्र। अगला अभ्यास हम लोग खड़े होकर करेंगे। उसके लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को आपस में लगभग सटा के रखेंगे। पूरा शरीर संतुलित करेंगे, यानी पूरे शरीर के भार को दोनों पैरों पर बराबर बराबर बांटेंगे और दोनों हाथ कंधों के बगल में ढीला रखेंगे। आँखों को बंद रखेंगे। कुछ देर के लिए शांत स्थिर खड़े रहेंगे। और फिर अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा लेंगे। सामने किसी एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे और हाथों को मोड़कर सर के ऊपर रखेंगे। पूरा शरीर सीधा संतुलित। जब आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। पैर के उंगलियों पर पूरे शरीर का भार, पूरा शरीर ऊपर, जैसे कोई ऊपर आपको खींच रहा हो। कुछ देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, पैर नीचे की तरफ, फिर श्वास लेंगे। पैर के उंगलियों पर, पूरे पंजे पर पूरे शरीर का भार, हाथ ऊपर ऊपर की तरफ खींचेंगे। चेहरा तनाव मुक्त और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास से हमारा पूरा शरीर खिंचाव उत्पन्न करता है और आराम की स्थिति में जाता है, जिससे हमारे शरीर को आराम महसूस होता है और ये शरीर की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद अभ्यास है। धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचते रहिए। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। श्वास लेंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को लगातार करते रहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को बगल में रख देंगे निकाल करके और फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। ये अभ्यास था ताड़ासन का। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, अपने कंधों के बराबर दूरी पर। दोनों हाथों के उंगलियों को फिर से फंसाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे और धीरे से हाथ को पूरा ऊपर सीधा करेंगे। बाह को कान से सटा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, कमर से धीरे धीरे झुकेंगे। श्वास लेते हुए सीधा और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस प्रकार से हम लोग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास 8 बार करेंगे दोनों तरफ। इस अभ्यास को करते समय घुटनों को सीधा रखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे सीधा, फिर श्वास छोड़ेंगे दूसरी तरफ। आप अपनी सहजता के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। इस अभ्यास को 8 बार दोनों तरफ करेंगे और इस अभ्यास से हमारे शरीर के बगल के जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। हाथ नीचे करेंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए फिर से दोनों पैरों को अलग अलग करेंगे, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे और यहाँ पर से दोनों हाथों को घुमाते हुए बाएं हाथ को पेट पर और दाहिनी हाथ को कंधों पर घुमाएंगे और फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ। घुमाते समय ध्यान रखेंगे कि कमर से ऊपर का हिस्सा घूमेगा, कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो स्थिर रहेगा। दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे। इसमें
श्वास छोड़ते हुए हम अपने शरीर को मोड़ेंगे पीछे की तरफ, गर्दन भी घुमाएंगे, पीछे देखेंगे, फिर श्वास लेंगे, सीधा श्वास छोड़ेंगे दूसरी तरफ। इस प्रकार से अभ्यास को हम लोग 10 से 12 बार तक करेंगे और पूर्णता की स्थिति में फाइनल पोजीशन में थोड़े देर के लिए मोड़कर रखेंगे। इस अभ्यास को हम लोग कभी कभी तीव्रता से भी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सामान्य रूप से दोनों तरफ से मोड़ेंगे, बाईं और दाहिनी तरफ श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ना है। यह अभ्यास हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से को लचीला बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही उपयोगी आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का अभ्यास यहाँ पर पूरा करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ सटा लेंगे, हाथ को नीचे, और सामान्य स्थिति में सीधे खड़े होकर आँखों को बंद कर अभ्यास के प्रभाव को महसूस करेंगे। कुछ क्षण के लिए जो अभ्यास आपने किया इसके प्रभाव को महसूस करेंगे कि शरीर के कौन से अंग में कोई तनाव महसूस हो रहा है, कहीं आराम महसूस हो रहा है, या जैसा भी आपको परिवर्तन हुआ हो उसे महसूस करने का प्रयास करिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे द्विकोण आसन। द्विकोण आसन के लिए दोनों पैरों को अलग अलग फैला के रखेंगे। आप बाईं या दाहिनी तरफ मुड़ सकते हैं। दोनों हाथ को पीछे, उंगलियों को जोड़ लेंगे, पूरा शरीर सीधा रखेंगे, उंगलियों को कसकर पकड़ेंगे ताकि खुले नहीं, और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। अभ्यास द्विकोण आसन। आगे झुकेंगे, फिर धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन सामने की तरफ, फिर धीरे से हाथ को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर श्वास लेते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। हाथ को नीचे करेंगे, धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ। अभ्यास द्विकोण आसन का। फिर से श्वास छोड़ेंगे, हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा हो जाइए। घुटनों को सीधा रखेंगे, दोनों पैरों के बीच दूरी बराबर बनाए रखेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। श्वास छोड़िए, फिर से आगे की तरफ झुकिए, और इस अभ्यास को हम लोग 8 बार करेंगे। जितनी बार आगे झुकेंगे कुछ क्षण के लिए आप रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकिए, हाथ को पूरा ऊपर खींचिए, श्वास लेते हुए फिर से सीधी स्थिति में अभ्यास द्विकोण आसन का। द्विकोण आसन का अभ्यास पूरा हो गया यहाँ पर। और फिर अगला अभ्यास हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए, त्रिकोण आसन में कई वेरिएशन हैं, पर हम लोग सामान्य वेरिएशन वाला करेंगे। पहला स्टेप, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे, और यहाँ से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ करके घुमाएंगे शरीर को। फिर से एक बार सीधा होंगे, वापस दूसरी तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को, वापस फिर सीधी स्थिति में, फिर से दूसरी तरफ। यहाँ पर श्वास लेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ बराबर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास को यहाँ पर पूरा करेंगे और फिर सीधी स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अभ्यास त्रिकोण आसन का। कुछ क्षण के लिए फिर यहाँ पर सीधे खड़े हो करके एक बार शरीर को मानसिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि शरीर के कौन से भाग पर क्या प्रभाव पड़ा।
अभ्यास त्रिकोण आसन का पूरा करने के उपरांत कमर पर, कंधों पर थोड़ा तनाव महसूस होता है, उसे वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए स्थिर शांत लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को संतुलित रखेंगे। अगला अभ्यास हम लोग बैठ कर करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में पहले बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में, दोनों पैरों को मोड़ करके, घुटनों को मोड़ते हुए दोनों एड़ी को अलग अलग करेंगे, पैर के अंगूठे आपस में सटाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, प्रारंभिक स्थिति दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिना कमर को उठाए हुए हाथ सर जमीन पर, और फिर धीरे से हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, पुनः श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे, खींचेंगे, सर को साथ रखते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ। इस अभ्यास को हम लोग 5 बार करेंगे, लेकिन हर बार फाइनल पोजीशन में पहुंचते समय थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इस अभ्यास से हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और इस बार थोड़े समय के लिए रुकेंगे। आराम की स्थिति में शशांक आसन का अभ्यास। फिर से धीरे से हाथ को सीधा करिए और ऊपर की तरफ उठ जाइए, हाथ को नीचे कर लीजिए। यहाँ पर शशांक आसन का अभ्यास समाप्त हुआ। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम में हम लोग नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम लोग। पहले सीधा बैठेंगे, आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासाग्र मुद्रा, दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर, 2 उंगलियों को भ्रूमध्य पर, और अनामिका रिंग फिंगर को लेफ्ट साइड बाईं साइड नासिका पर रखेंगे। छोटे वाले को ढीला छोड़ देंगे, सीधा नासाग्र मुद्रा। अब यहाँ से बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से छोड़ेंगे, कुछ देर तक बाईं नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे तो दाहिनी नासिका को खोल देंगे और दाहिनी नासिका से श्वास लेकर दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। श्वास लेने और छोड़ने यानी रेचक और पूरक दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। कुछ देर इस अभ्यास को करने के बाद बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ से श्वास लेकर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ी का शुद्धिकरण करते हैं। श्वास को कहीं भी रोकेंगे नहीं, एक फ्लो में श्वास लेकर छोड़ते रहेंगे। बाईं नासिका से लेकर दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेकर बाईं से छोड़ेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक प्राणायाम करने के उपरांत हाथों को नीचे कर देंगे और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों दांतों को हम लोग अलग अलग रखेंगे, ओठ को बंद कर लेंगे। दोनों दांत अलग अलग, ओठ बंद रहेंगे।
और फिर दोनों उंगलियों से अपने कान को बंद करेंगे, चाहे आप हथेली से बंद कर सकते हैं अथवा उंगलियों से बंद करेंगे। दोनों एल्बो को पूरा खोल करके रखेंगे, सर सीधा रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेकर और भौरे जैसा गुंजन करेंगे अथवा ओम का उच्चारण करेंगे। ओठ हमारे बंद रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। सात बार इस अभ्यास को करेंगे। सात बार तक इस अभ्यास को पूरा करने के उपरांत हाथ को नीचे रख देंगे, आँखों को कुछ देर के लिए बंद रखेंगे। बंद आँखों से पूरे मन मस्तिष्क में हो रहे गुंजन को सुनेंगे, उत्पन्न तरंगों को जो आवाज़ों के द्वारा उत्पन्न हुई है उसे सुनने का प्रयत्न करेंगे। और फिर दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करेंगे, आँखों पर रखेंगे, धीरे से आँखों को खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। I now request our respected Head of Academics and Innovation, Archana Mishra ma'am, to address us. So, dear children, you saw how these asanas are going to help us, and we must accept that majority of our physical ailments are psychosomatic. So, a healthy mind keeps the immune system robust and prevents many diseases. So, in Jaipuria school, you are being taught these on regular basis, so practice them. And I would suggest, please inspire your family members also, since you are at home attending online classes, so that they can also practice along with you. And we do everything for everybody's well-being. So this will be a task for you from today. And I must say, children, we should be grateful to God that we are born in such a great country, which enlightened the whole world by showing the right way of living. One of them is yoga. And it becomes very important for us to know the history of yoga on this day. Yoga was revealed to us by great sage Patanjali through his work Yoga Sutra, which is considered to be one of the foundational texts of the classical yoga philosophy. Yoga Sutra, as the name goes, sutra means thread. And each sutra represents one thread in the rich tapestry that is yoga. The thread sutra are drawn together through 4 chapters of Yoga Sutra. And they are Samadhi, Sadhana, Vibhuti, and Kaivalya. Every attempt to understand their true meaning is a step closer to enlightenment. In the very first sutra of Patanjali's Yoga Sutra, he has said, Yogaschit Vritti Nirodha, meaning thereby, yoga is a practice which can control the distractions of mind. Just see how beautiful it is. When the mind is settled, we are able to see things clearly and find a deeper sense of peace. It teaches us to look within. And this is what we all practice at Jaipur. I think you'll agree with me. Your practice of silence is the same thing, to look within. Lord Krishna says that entire Bhagavad Gita is Yoga Shastra. The highest form of yoga, as per Gita ji, is union of the soul with God. Now what is it? It fills us with God powers and virtues such as peace, purity, truth, and love. It develops pure harmony between the soul and the external world, spirit and matter, thought and action. It enables us to live in love,
peace, and harmony with the self, fellow beings, nature, and environment. So, I would like to conclude in the words of Shri Krishna only. From Bhagavad Gita, this verse has been taken. Yoga is the journey of the self, through the self, to the self. So, let us all embark on this journey together to make our lives better. Archana Mishra ma'am, thank you so much. And thank you all the teachers. I just want to tell you one thing, that on this day, just think how your country is leading the world. On one hand, we have those aerobic exercises and all the visits to the gymnasiums that you have. They are only about your physical well-being. But yoga goes beyond that. It goes beyond physical well-being. That is why it talks of mental well-being as well. It is not only about a feel-good factor, it is about joining with yourself. Thank you so much. Whoever is the child who has to say the last yoga, please come forward. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Vandanat Mrityurmokshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti.